Hello everyone. Lost Spring. Writer Anis Jung. Stories of Stolen Childhood. Sometimes I find a rupee in the garbage. कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है. Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मैं साहिब से पूछता हूँ, जो हर सुबह मेरे पड़ोस के कूड़े के ढेर में सोना ढूंढते हुए मिलते हैं. साहिब left his home long ago. साहिब ने बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया था. Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. ढाका के हरे भरे खेतों के बीच बसा उनका घर अब किसी की याद तक नहीं है. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. उनकी माँ बताती हैं कि कई तूफान आए थे जो उनके खेतों और घरों को बहा ले गए थे. That's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. इसलिए वे चले गए और अब वे जिस बड़े शहर में रहते हैं वहां सोना ढूंढने चले गए. I have nothing else to do, he mutters, looking away. मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, वह दूसरी ओर देखते हुए बुदबुदाता है. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. स्कूल जाओ, मैंने सहजता से कहा और तुरंत महसूस किया कि यह सलाह कितनी खोखली लग रही होगी. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है. जब वे एक स्कूल बनाएंगे, तो मैं वहां जाऊंगा. If I start a school, will you come? I ask, half joking. अगर मैं एक स्कूल खोलूं, तो क्या तुम आओगे? मैंने आधे मजाक में पूछा. Yes, he says, smiling broadly. हाँ, वह मुस्कुराते हुए कहता है. A few days later I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि वह दौड़कर मेरे पास आ रहा है और पूछ रहा है, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? It takes longer to build a school. स्कूल बनाने में ज्यादा समय लगता है. I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. मैं शर्मिंदा होकर कहता हूँ कि मैंने ऐसा वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन मेरे जैसे वादे उसकी उदास दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं. After months of knowing him. महीनों तक उसे जानने के बाद. I ask him his name. मैंने उससे उसका नाम पूछा. साहिब-ए-आलम, he announces. उसने कहा, साहिब-ए-आलम. He does not know what it means. उसे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. अगर उसे इसका मतलब पता होता, तो उसे यकीन करना मुश्किल होता. Unaware of what his name represents?
अपने नाम के बारे में न जानते हुए। He roams the streets with his friends. वह अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर घूमता है। An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. नंगे पांव लड़कों की एक सेना जो सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई देती है और दोपहर में गायब हो जाती है। Over the months, I have come to recognize each of them. महीनों के दौरान मैं उनमें से हर एक को पहचानने लगा हूँ। Why aren't you wearing chappal? I ask one. मैंने उनमें से एक से पूछा, आपने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? My mother did not bring them down from the shelf. मेरी माँ उन्हें शेल्फ से नीचे नहीं लाई थी। He answers simply. वह सरलता से उत्तर देता है। Even if she did, he will throw them off. अगर उसने ऐसा किया भी तो वह उन्हें फेंक देगा। Adds another who is wearing shoes that do not match. दूसरा व्यक्ति जो जूते पहने हुए है, वह कहता है। When I comment on it. जब मैं इस पर टिप्पणी करता हूँ। He shuffles his feet and says nothing. तो वह अपने पैरों को घसीटता है और कुछ नहीं कहता। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. मुझे जूते चाहिए, तीसरा लड़का कहता है जिसके पास जीवन भर एक भी जोड़ा नहीं रहा। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities, on village roads. देश भर में यात्रा करते हुए मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते देखा है, शहरों में, गांव की सड़कों पर। It is not lack of money but a tradition to stay barefoot, is one explanation. यह पैसे की कमी नहीं है, बल्कि नंगे पैर रहने की परंपरा है, एक व्याख्या है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मुझे आश्चर्य है कि क्या यह केवल गरीबी की निरंतर स्थिति को समझाने का एक बहाना है। I remember a story a man from Udupi once told me. मुझे एक कहानी याद है जो एक बार उडुपी के एक व्यक्ति ने मुझे सुनाई थी। As a young boy he would go to school past an old temple. एक छोटे लड़के के रूप में वह एक पुराने मंदिर के पास से स्कूल जाता था। Where his father was a priest. जहां उसके पिता पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वह मंदिर में कुछ देर रुकता था और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later I visited his town and the temple. 30 साल बाद मैंने उसके शहर और मंदिर का दौरा किया। Which was now drowned in an air of desolation. जो अब वीरानी के माहौल में डूबा हुआ था। In the backyard, where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. पिछवाड़े में, जहां नया पुजारी रहता था, लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थीं। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting. ग्रे रंग की वर्दी पहने, मोजे और जूते पहने एक छोटा लड़का हांफता हुआ आया।
and threw his school bag on a folding bed. और उसने अपना स्कूल बैग एक फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया. Looking at the boy, लड़के को देखकर, I remembered the prayer another boy had made to the goddess. मुझे एक और लड़के की प्रार्थना याद आ गई जो उसने देवी से तब की थी. When he had finally got a pair of shoes. जब उसे आखिरकार एक जोड़ी जूते मिल गए थे. Let me never lose them. मुझे उन्हें कभी न खोना. The goddess had granted his prayer. देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी. Young boys like the son of the priest now wore shoes. पुजारी के बेटे जैसे युवा लड़के अब जूते पहनते हैं. But many others like the ragpickers in my neighborhood remain shoeless. लेकिन मेरे पड़ोस में कूड़ा बीनने वालों जैसे कई अन्य लोग बिना जूतों के ही रह गए हैं. My acquaintance with the barefoot ragpickers leads me to Simpuri. नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है. A place on the periphery of Delhi yet miles away from it. Metaphorically, जो दिल्ली के बाहरी इलाके में है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से उससे मीलों दूर है. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. यहाँ रहने वाले लोग 1971 में बांग्लादेश से आए अवैध रूप से रहने वाले लोग हैं. Sahib's family is among them. साहब का परिवार भी उनमें से एक है. Simpuri was then a wilderness. सीमापुरी तब एक जंगल था. It still is, but it is no longer empty. यह अब भी है, लेकिन अब यह खाली नहीं है. In structures of mud, मिट्टी के ढांचे में, with roofs of tin and tarpaulin, टिन और तिरपाल की छतों के साथ, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 ragpickers. सीवेज, ड्रेनेज या बहते पानी से रहित 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं. They have lived here for more than 30 years without an identity. वे 30 साल से भी ज्यादा समय से बिना किसी पहचान के. Without permits but with ration cards that get their names on voters lists. बिना परमिट के लेकिन राशन कार्ड के साथ यहाँ रह रहे हैं, जिससे उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो गया है. And enable them to buy grain. और वे अनाज खरीद सकते हैं. Food is more important for survival than an identity. पहचान से ज्यादा भोजन जीवित रहने के लिए जरूरी है. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. अगर दिन के आखिर में हम अपने परिवारों को खाना खिला सकें और बिना पेट दर्द के सो सकें, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, बजाय उन खेतों में रहने के, जिन्होंने हमें अनाज नहीं दिया. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. जब मैंने फटी हुई साड़ियों में महिलाओं के एक समूह से पूछा कि उन्होंने हरे भरे खेतों और नदियों वाली अपनी खूबसूरत जमीन क्यों छोड़ी,
तो उन्होंने कहा, Wherever they find food, जहां भी उन्हें भोजन मिलता है, they pitch their tents that become transit homes. वे अपने तंबू गाड़ लेते हैं जो अस्थायी घर बन जाते हैं. Children grow up in them. बच्चे उनमें बड़े होते हैं. Becoming partners in survival. और जीवनयापन में भागीदार बनते हैं. And survival in Simpuri means rack picking. और सीमापुरी में जीवनयापन का मतलब है कूड़ा बीनना. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. वर्षों से यह एक बेहतरीन कला का रूप ले चुका है. Garbage to them is gold. उनके लिए कूड़ा सोना है. It is their daily bread. यह उनकी रोजी रोटी है. A roof over their heads. उनके सिर पर छत है. Even if it is a leaking roof. भले ही वह टपकती हुई छत ही क्यों न हो. But for a child it is even more. लेकिन एक बच्चे के लिए यह और भी ज्यादा है. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. कभी कभी मुझे 1 रुपया, यहाँ तक कि 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है. साहिब says, his eyes lighting up. साहब कहते हैं, उनकी आंखें चमक उठती हैं. When you can find a silver coin in a heap of garbage. जब आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है. You don't stop scrounging. For there is hope of finding more. तो आप ढूंढना बंद नहीं करते, क्योंकि और भी मिलने की उम्मीद होती है. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरे का मतलब उनके माता-पिता से अलग होता है. For the children it is wrapped in wonder, for the elders it is a means of survival. बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटा होता है, बड़ों के लिए यह जीने का एक साधन है. One winter morning. सर्दियों की एक सुबह. I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club. मैंने देखा कि साहब पड़ोस के क्लब के बाड़े वाले गेट के पास खड़े हैं. Watching 2 young men dressed in white, playing tennis. और सफेद कपड़े पहने 2 युवकों को टेनिस खेलते हुए देख रहे हैं. I like the game. मुझे यह खेल पसंद है. He hums, content to watch it standing behind the fence. वह बाड़े के पीछे खड़े होकर इसे देखने में संतुष्ट होकर गुनगुनाते हैं. I go inside when no one is around, he admits. मैं तब अंदर जाता हूँ, जब कोई नहीं होता, वह स्वीकार करते हैं. The gatekeeper lets me use the swing. गेटकीपर मुझे झूला झूलने देता है. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. साहब ने भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं, जो उनकी फीकी शर्ट और शॉर्ट्स के ऊपर अजीब लग रहे हैं. Someone gave them to me. किसी ने मुझे ये दिए हैं. He says in the manner of an explanation. वह स्पष्टीकरण देने के अंदाज में कहते हैं.
The fact that they are discarded shoes of some rich boy. यह तथ्य कि वे किसी अमीर लड़के के फेंके हुए जूते हैं, who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, does not bother him. जिसने शायद उनमें से एक में छेद होने के कारण उन्हें पहनने से इनकार कर दिया, उन्हें परेशान नहीं करता. For one who has walked barefoot, जो नंगे पैर चला हो. Even shoes with a hole is a dream come true. उसके लिए छेद वाले जूते भी सपने के सच होने जैसा है. But the game he is watching so intently is out of his reach. लेकिन जिस खेल को वह इतने ध्यान से देख रहा है, वह उसकी पहुंच से बाहर है. This morning, Sahib is on his way to the milk booth. आज सुबह साहब दूध की दुकान पर जा रहे हैं. In his hand is a steel canister. उनके हाथ में स्टील का एक कनस्तर है. I now work in a tea stall down the road. मैं अब सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ. He says, pointing in the distance. वे दूर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं. I am paid 800 rupees and all my meals. मुझे 800 रुपए मिलते हैं और मेरा सारा खाना भी. Does he like the job? I ask. क्या उन्हें यह काम पसंद है? मैं पूछता हूँ. His face, I see, has lost the carefree look. उनके चेहरे पर बेफिक्री गायब हो गई है. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. स्टील का कनस्तर उस प्लास्टिक बैग से ज्यादा भारी लग रहा है जिसे वे अपने कंधे पर हल्के से लटका कर रखते थे. The bag was his. बैग उनका था. The canister belongs to the man who owns the tea shop. कनस्तर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है. साहिब is no longer his own master. साहब अब अपने मालिक नहीं रहे. I want to drive a car. मैं कार चलाना चाहता हूँ. मुकेश insists on being his own master. मुकेश अपना मालिक खुद बनने पर जोर देता है. I will be a motor mechanic, he announces. वह कहता है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा. Do you know anything about cars? I ask. मैंने पूछा, क्या आप कारों के बारे में कुछ जानते हैं? I will learn to drive a car. मैं कार चलाना सीखूंगा. He answers, looking straight into my eyes. वह सीधे मेरी आंखों में देखते हुए जवाब देता है. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. चूड़ियों के लिए मशहूर उसके शहर फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच उसका सपना मृगतृष्णा की तरह मंडराता है. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है. It is the center of India's glass blowing industry. यह भारत के कांच बनाने की उद्योग का केंद्र है. Where families have spent generations working around furnaces.
जहां परिवारों ने भट्टियों के आसपास काम करते हुए वेल्डिंग ग्लास, कांच को वेल्ड करते हुए मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द विमेन इन द लैंड इट सीम्स, देश की सभी महिलाओं के लिए चूड़ियां बनाते हुए पीढ़ियां बिताई हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures, in dingy cells without air and light. उनमें से कोई नहीं जानता कि उसके जैसे बच्चों के लिए उच्च तापमान वाली कांच की भट्टियों में हवा और रोशनी के बिना गंदे कोठरियों में काम करना गैरकानूनी है। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces. कि अगर कानून लागू किया जाता है तो उसे और उन सभी 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है। Where they slog their daylight hours, जहां वे दिन भर काम करते हैं। Often losing the brightness of their eyes, अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home. मुकेश की आंखें चमक रही हैं जब वह मुझे घर ले जाने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। Which he proudly says is being rebuilt, जिसके बारे में वह गर्व से कहता है कि उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। We walk down stinking lanes choked with garbage. हम कूड़े से भरी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं। Past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows. घरों के पीछे से गुजरते हैं जो ढहती दीवारों, हिलते हुए दरवाजों, बिना खिड़कियों के झुग्गी झोपड़ियां बने हुए हैं। Crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. जहां आदिम अवस्था में सहअस्तित्व में रहने वाले मनुष्यों और जानवरों के परिवारों की भीड़ है। He stops at the door of one such house. वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुकता है। Bangs a wobbly iron door with his foot. लोहे के हिलते हुए दरवाजे को पैर से धक्का देता है। And pushes it open. और उसे खोल देता है। We enter a half-built shack. हम एक आधी बनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। In one part of it, इसके एक हिस्से में thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. सूखी घास से छप्पर बना है। एक लकड़ी का चूल्हा है जिस पर एक बड़ा बर्तन में पालक के पत्ते पक रहे हैं। On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables. जमीन पर बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेटों में और कटी हुई सब्जियां हैं। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक कमजोर युवती पूरे परिवार के लिए शाम का खाना पका रही है। Through eyes filled with smoke she smiles. धुएं से भरी आंखों से वह मुस्कुराती है। She is the wife of Mukesh's elder brother. वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। Not much older in years. वर्षों में ज्यादा उम्र नहीं।
She has begun to command respect as the बहू. वह बहू के रूप में सम्मान प्राप्त करने लगी है. The daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh, and their father. घर की पुत्रवधू, जो पहले से ही 3 पुरुषों, उसके पति, मुकेश और उनके पिता की जिम्मेदारी संभाल रही है. When the older man enters, जब बड़ा आदमी प्रवेश करता है, she gently withdraws behind the broken wall. वह धीरे धीरे टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है. And brings her veil closer to her face. और अपना घूंघट अपने चेहरे के और पास ले आती है. As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. जैसा कि प्रथा की मांग है, बहुओं को पुरुष बुजुर्गों के सामने अपना चेहरा ढककर रखना चाहिए. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. इस मामले में बुजुर्ग एक गरीब चूड़ी निर्माता है. Despite long years of hard labor, कई सालों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद, first as a tailor, then a bangle maker, पहले एक दर्जी के रूप में, फिर चूड़ी बनाने के रूप में, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. वह एक घर का नवीनीकरण करने, अपने 2 बेटों को स्कूल भेजने में असफल रहा है. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. वह बस इतना ही कर पाया है कि उन्हें वह सिखा पाया है जो वह जानता है, चूड़ियां बनाने की कला. It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother. मुकेश की दादी कहती है, यह उसका कर्म है, उसकी नियति है. Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. जिन्होंने अपने पति को चूड़ियों के कांच चमकाने की धूल से अंधा होते देखा है. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. क्या ईश्वर द्वारा दी गई कोई परंपरा कभी टूट सकती है? उनका कहना है. Born in the caste of bangle makers. चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्मे. They have seen nothing but bangles. उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा है. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में. Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yards. चूड़ियों के सर्पिल, धूपदार सुनहरा, धान हरा, शाही नीला, गुलाबी, बैंगनी, इंद्रधनुष के 7 रंगों में से हर रंग अव्यवस्थित आंगन में टीलों में पड़े हैं. Are piled on 4-wheeled handcarts. 4 पहियों वाले ठेलों पर रखे हुए हैं. Pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. जिन्हें झुग्गी बस्ती की संकरी गलियों में युवा पुरुष धकेल रहे हैं. And in dark hutments. और अंधेरी झोपड़ियों में. Next to lines of flames of flickering oil lamps.
टिमटिमाते तेल के दियों की लपटों की कतारों के बगल में। Sit boys and girls with their fathers and mothers. लड़के और लड़कियां अपने पिता और माँ के साथ बैठे हैं। Welding pieces of colored glass into circles of bangles. रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के घेरे में वेल्ड कर रहे हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उनकी आंखें बाहर की रोशनी की तुलना में अंधेरे के लिए अधिक अनुकूल हैं। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. यही कारण है कि वे अक्सर वयस्क होने से पहले ही अपनी दृष्टि खो देते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman, soldering pieces of glass. गुलाबी रंग की फीकी पोशाक पहने एक युवा लड़की सविता कांच के टुकड़ों को मिलाती हुई एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठी है। As her hands move mechanically like the tongs of a machine. जब उसके हाथ मशीन के चिमटे की तरह यांत्रिक रूप से चलते हैं। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिन्हें बनाने में वह मदद करती है। It symbolizes an Indian woman's सुहाग, auspiciousness in marriage. यह एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है, विवाह में शुभता। It will dawn on her suddenly one day. एक दिन अचानक उसे यह एहसास होगा। When her head is draped with a red veil. जब उसके सिर पर लाल घूंघट होगा। Her hands dyed red with henna. उसके हाथ मेहंदी से लाल रंगे होंगे। And red bangles rolled onto her wrists. और उसकी कलाई पर लाल चूड़ियां होंगी। She will then become a bride. फिर वह दुल्हन बन जाएगी। Like the old woman beside her who became one many years ago. उसके बगल में बैठी उस बूढ़ी महिला की तरह जो कई साल पहले दुल्हन बन गई थी। She still has bangles on her wrist. उसकी कलाई पर अभी भी चूड़ियां हैं। But no light in her eyes. लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त स भर खाना भी नहीं खाया। She says, in a voice drained of joy. वह खुशी से भरी आवाज में कहती है, एक वक्त से ज्यादा खाना भी नहीं खाया। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. उसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी पूरा खाना नहीं खाया है, बस यही उसने काटा है। Her husband, an old man with a flowing beard, says. उनके पति, जो लंबी दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति हैं, कहते हैं, I know nothing except bangles. मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता। All I have done is make a house for the family to live in. मैंने बस परिवार के रहने के लिए एक घर बनाया है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. उसे सुनकर कोई भी सोच सकता है कि क्या उसने वह हासिल कर लिया है जो कई लोग अपने जीवन काल में असफल हो गए हैं। He has a roof over his head.
उसके सिर पर छत है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. हर घर में यह रोना गूंजता है कि चूड़ियां बनाने का व्यवसाय करने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। The young men echo the lament of their elders. युवा अपने बुजुर्गों की तरह ही विलाप करते हैं। Little has moved with time, it seems, in फिरोजाबाद। ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ बहुत कम बदलाव हुए हैं। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. वर्षों की दिमाग सुन्न करने वाली मेहनत ने सारी पहल और सपने देखने की क्षमता को खत्म कर दिया है। Why not organize yourselves into a cooperative? क्यों न आप लोग एक सहकारी समिति के रूप में संगठित हो जाएं? I ask a group of young men. मैं उन युवाओं के समूह से पूछता हूँ who have fallen into the vicious circle of middlemen, जो बिचौलियों के दुष्चक्र में फंस गए हैं। Who trapped their fathers and forefathers, जिन्होंने उनके पिता और पूर्वजों को फंसाया था। Even if we get organized, अगर हम संगठित भी हो जाएं, we are the ones who will be hauled up by the police, तो हम ही वे लोग हैं जिन्हें पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा। Beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. पीटा जाएगा और कुछ अवैध काम करने के लिए जेल में घसीटा जाएगा, वे कहते हैं। There is no leader among them. उनके बीच कोई नेता नहीं है। No one who could help them see things differently. कोई भी ऐसा नहीं है जो उन्हें चीजों को अलग तरह से देखने में मदद कर सके। Their fathers are as tired as they are. उनके पिता भी उतने ही थके हुए हैं जितने वे हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वे गरीबी से उदासीनता, लालच और अन्याय तक बढ़ते हुए एक सर्पिल में अंतहीन बातें करते हैं। Listening to them, I see two distinct worlds. उनकी बातें सुनकर मुझे दो अलग-अलग दुनियाएं नजर आती हैं। One of the family caught in a web of poverty. एक परिवार गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। Burdened by the stigma of caste in which they are born. जिस जाति में वे पैदा हुए हैं, उसके कलंक से बोझिल है। The other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. दूसरा साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून के रखवालों, नौकरशाहों और राजनेताओं का दुष्चक्र है। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. इन सबने मिलकर बच्चे पर ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वह उतार नहीं सकता। Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. उसे पता भी नहीं चलता, वह इसे अपने पिता की तरह सहजता से स्वीकार कर लेता है। To do anything else would mean to dare. कुछ और करने का मतलब होगा हिम्मत करना।
and daring is not part of his growing up. और हिम्मत करना उसके बड़े होने का हिस्सा नहीं है. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. जब मैं मुकेश में इसकी झलक देखता हूं, तो मैं खुश हो जाता हूं. I want to be a motor mechanic, he repeats. मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं, वह दोहराता है. He will go to a garage and learn. वह गैराज में जाकर सीखेगा. But the garage is a long way from his home. लेकिन गैराज उसके घर से बहुत दूर है. I will walk, he insists. मैं पैदल चलूंगा, वह जोर देता है. Do you also dream of flying a plane? क्या तुम भी हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखते हो? He is suddenly silent. वह अचानक चुप हो जाता है. No, he says, staring at the ground. नहीं, वह जमीन पर घूरते हुए कहता है. In his small murmur there is an embarrassment. उसकी हल्की सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी है. That has not yet turned into regret. जो अभी तक पछतावे में नहीं बदली है. He is content to dream of cars. वह उन कारों के सपने देखने में संतुष्ट है. That he sees hurtling down the streets of his town. जिन्हें वह अपने शहर की सड़कों पर दौड़ते हुए देखता है. Few airplanes fly over फिरोजाबाद. फिरोजाबाद के ऊपर बहुत कम हवाई जहाज उड़ते हैं. Thanks. Hello everyone.